कॉल सेंटर में जो है वो कॉल्स किस तरह ली जाती हैं, आज का ये प्रोसेस जो है वो मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे मेनली ऑपरेशंस जो है वो कॉल्स के किस तरह लिए जाते हैं और कस्टमर को कैसे जो है वो ग्रैब किया जाता है। बेसिकली जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, ये कॉलिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हार्डकोर कॉल्स होती हैं हमारी, लाइक कोड कॉल्स। तो मैं इसमें ये चीज़ आपको समझाऊंगा कि कस्टमर किस तरह आंसर करता है और आपने किस तरह जो है इसमें कॉल्स लेनी होती है। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपको यह है कि प्रोडक्ट नॉलेज उसमें आपको चाहिए होगा। और सेकंड जो चीज़ है, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए, लाइक आपके वर्ड्स जो है वो फ्लुएंट होने चाहिए। एटलीस्ट कस्टमर को ये समझ आनी चाहिए कि जो आप बात कर रहे होते हैं उसको जो है वो आपने अपने डिलीवरी ऑफ वर्ड्स के थ्रू उसको इम्प्रेस करना होता है और उसको इंटरेस्टेड करवाना होता है उस चीज़ में जिस पे आप सेल करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैं आपको समझाऊंगा कि कॉल्स किस तरह लेते हैं हम। मैं यहाँ पे एक मॉक कॉल सेशन करके आपको इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा। अब यहाँ पे रियल में जो कॉल्स ली जाती हैं उनमें यह होता है कि उससे ज़्यादा कॉल्स जो है वो मेजॉरिटी ज़्यादा लेंथ में नहीं चलती, तो मैं कोशिश करूँगा वो भी कॉल आपको सुनाई जाए नेक्स्ट वीडियो में। बट फॉर नाउ ये है कि मैं आपको प्रैक्टिस करके समझाऊंगा कि पर्सनली मैं कैसे कॉल्स लिया करता हूँ और किस तरह कस्टमर को ग्रैब किया करता हूँ। तो इसमें मुझे यहाँ ये है कि लाइवली यहाँ पे भाई मुझे कैमरा के बिहाइंड जो है वो मुझे इस चीज़ का आंसर देंगे एज अ कस्टमर, और मैं एज अ कॉल सेंटर एजेंट जो है वो कॉल लेना सिखाऊंगा आपको। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, हेलो Hello, hey, this is Mark and I'm calling you from Nexus LLC. How are you doing today? I'm doing great. What about you? I'm doing fantastic. Thank you so much for asking. Well, the reason I'm reaching you out because we are working with the businesses like yours to take care of things like we help the businesses to take care of building the websites, handle the social media presence, and we also make the customers on the top of the list on the Google ranking with using the SEO services. So, can I know how do you handle these kind of services and the stuff for your business? Yeah, well, I appreciate reaching you out. Well, we already have a team for that, and we have everything covered up. But thank you so much for your call, and I'm not interested for now. That's great. You already have a team for your services and for your business. That's might gonna take much of your time and energy. A kind of it is not more expensive for your business. Like we can also get these are services with the half of the budget for your business. Oh well, what do you guys offer, and what's the best pricing that you? Well, we have bunch of services. In at one point, we can offer you the services like we can give you the team that gonna take the charge of the social media, and they guys can offer build the website, and the maintenance of the website will can also take care of by the My Professionals teams in house. And you do not have to get that team in house to make some extra expenses for them. So we can handle them virtually, and you do not have to work on that. We can manage it, and you just can take the reports on the daily basis. So that's the things that exactly we can do for your business to just to decrease the expense. Well, sounds amazing. Well, do you have my email or something so you can just send over the detail? I have your email also, and we can also provide you my website and the company details. So we can set a call back with your company so we can discuss about that, the more things about the services that we can provide you. So before we go ahead, can I know how do you get the customers for your business, like from the social media or the website, and what kind of customers you are getting? Well, I just already told you we have a team for that, and I'm kind of interested in whatever you just told me about the pricing and the affordability. So I'll just see you in the meeting then. I've provided you my email, so you can just send over the link that you guys do Zoom or something, so I can just join the Zoom, and then we can talk and discuss in details. That sounds good. I will provide you the all details over the emails, and we can schedule a meeting on the Zoom so we can discuss over the all things regarding to your business, so we can collab on this. That sounds perfect. Sounds great. See you then. That's great. Thank you so much for your time, and you have a great day. You too. Have a great Bye-bye. day. Bye. So this is the basic call that we can take for in the BPO. इस तरह की कॉल्स जो है वो मोस्टली ली जाती है।
अब ये तो टेन्योर ज़्यादा है, लेकिन ये है कि आपने जो ऑपरेशंस करने होते हैं कॉल सेंटर में, वो एज़ इट इज़ इतना लेंथी कॉल नहीं चलेगी। मैंने एक जस्ट आपको आइडिया समझाया, वो कॉल की आपने 40 सेकेंड 30 सेकेंड्स की कॉल आपकी चलेगी। उसमें कस्टमर ज़्यादा जो है वो कॉल हैंग अप कर देते हैं, आपकी बात नहीं सुनने देते। उसमें कुछ ना कुछ कस्टमर्स आपने 3-4 जो है वो ग्रैब करने होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, उनको अपनी स्किल्स के थ्रू आपने उनको समझाना होता है। और ये चीज़ जो है वो बिल्कुल मुझे भी पहले नहीं आती थी, बट किस तरह आई है कि जैसे ही आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपने क्या करना होता है कि वो आपको एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर देते हैं। जब आप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं ऑन द डेली बेसिस, वो चीज़ें आपकी जो है वो ज़्यादा फ्लुएंट हो जाती है उनके लिए। दूसरा, वो आप प्रोडक्ट नॉलेज आपको मिल जाता है कि आप किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। अब ये कॉल जो मैंने लिया है, ये हम क्या करते हैं कि जी हम कंपनीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक द वेबसाइट्स एंड अदर काइंड ऑफ सर्विसेज। मतलब हम उनका सोशल मीडिया कवर करते हैं, उनकी वेबसाइट जो हैं वो हम बनाते भी हैं और हैंडल भी करते हैं, और SEO सर्विसेज भी जो है वो कंपनीज़ को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इट्स अ B2B बिजनेसेस। ये है कि हम B2B कॉल्स कर रहे हैं, जिसमें बिज़नेस टू बिज़नेस रीच कर रहे हैं। अब मोस्टली कॉल सेंटर्स ये होते हैं वो B2C कर रहे होते हैं, लाइक वो इंडिविजुअल्स को कॉल कर रहे होते हैं। लाइक कि अगर हमारा बिज़नेस यहाँ पे कोई काम कर रहा है ना, तो वहाँ पे US के लिए अगर किसी हम बिज़नेस को रीच आउट कर रहे हैं तो इट्स अ B2B। अगर हम किसी एक फर्दर किसी कस्टमर को कॉल कर रहे होते हैं जो किसी बिज़नेस रन नहीं कर रहा होता, तो वो B2C होता है, उसको हम इंडिविजुअल चीज़ जो है वो सेल कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ द मेन ऑपरेशन फॉर द कॉल सेंटर। अब इसमें यह होता है कि कुछ कॉल सेंटर्स में वेरिफिकेशंस वगैरह भी होती हैं कि मतलब ये कस्टमर आइदर वेरीफाइड है या नहीं, ये सही बोल रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन की नहीं, तो वो उस चीज़ में B2C में ज़्यादा ये चीज़ें डिप्लॉय कर रही होती हैं। लेकिन B2B में ये होता है कि ये हार्डकोर सेलिंग होती है और इसको डायरेक्टली हम ग्रैब कर लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी डिटेल्स भी होती हैं कंपनीज़ की, तो हम ज़ूम मीटिंग में जब मैंने कस्टमर को स्केड्यूल किया हुआ है, तो ज़ूम मीटिंग में जब मेरे पास आएगा तो हम उसका बिज़नेस मॉडल जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। मेरी टीम बैठेगी वहाँ पे, तो हम उसको पूछेंगे कि आपको कस्टमर कहाँ पे जो है वो लैग कर रहा है, मीन्स कि आपको कस्टमर नहीं मिल रहा। अगर उसको सोशल मीडिया पे नहीं मिल रहा तो हम उसकी हेल्प करेंगे, हम एड्स वगैरह चलाएँगे उसके लिए। अगर वेबसाइट पे भी नहीं मिल रहा तो हम वेबसाइट उसकी ठीक करेंगे, देखेंगे वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कस्टमर को। और सेकेंडली हम SEO सर्विसेज भी उसके लिए रन करेंगे कि मतलब वो टॉप ऑफ द लाइन जो है वो बिज़नेस एग्जिस्ट करे। मतलब वो मैं अगर कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ तो वो बिज़नेस जो है वो टॉप लाइन पे ताकि एग्जिस्ट करे, तो वो ज़्यादा जो है उसकी रैंकिंग अच्छी होने की वजह से कस्टमर भी ज़्यादा मिलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फर्दर होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन नाउ, have a good day and take care of yourself. Bye bye.